some of the parts of the psychiatric emergencies. So now in the last class we have discussed victim of the disaster. So some points are here remaining. In the like victim of disaster, the people who have survived a sudden, unexpected, overwhelming stress, just like earthquake, flood, riots, then terrorism. These are some of the examples of the disaster. So that what type of common features can be developed in the person, like anger, frustration, guilt, numbness, and confusion. So because of the disaster, the person should have the common feature. So what are the disaster, earthquake, flood, and riot, and terrorism? So then cyclone and famine also is one of the example of the disasters. So in the impact of the disaster, we can see so many things here, like यदि पर्सन को डिजास्टर यदि एक्सपोज होता है, यदि कोई भी पर्सन रिकवर हो चुका है या ऑलरेडी डिजास्टर कंडीशन के अंदर है, तो द पर्सन शुड हैव द फीलिंग ऑफ शॉक्ड, ओवरव्हील का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। द पर्सन के अंदर एक प्रकार के स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, दैट शुड बी इन द पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म के अंदर। सो इमोबिलाइज, पैनिक, स्ट्राइकन और कंफ्यूज्ड। पेशेंट विल बी लाइक इमोबिलाइज्ड होता है, पैनिक होता है, स्ट्राइकन होता है और कंफ्यूज्ड होता है। मोर कंफ्यूजन विल बी क्रिएटिंग विविड एंड नाइटमेयर। विविड नाइटमेयर होता है, नाइट को जस्ट बार बार बेड से उठता है और उसको जस्ट देयर सम irrelevant thoughts are coming from the mind, so the person should have the vivid nightmare. Apathy, the person is the lack of interest with the any type of activity. The person is withdrawal from the reality. Memory lapses, memory lapse हो जाती है. Fatigue and loss of appetite, the person should have the loss of appetite also. Insomnia, lack of feeling sleep, irritability, panic attack or dysphoria. These all effects of the disaster can happen in the person after the disaster. So next is the disaster. What are the conditions we have to maintain in the disaster management cycle? So disaster management cycle, first we can see there are two conditions here, after event और before event. After event का मतलब होता है कि यदि disaster हो चुका है, ठीक है, उसके बाद, और डिजास्टर होने से पहले हमें क्या मैनेजमेंट फॉलो करना है। सो यदि डिजास्टर फॉलो हो रहा है, तो डिजास्टर फॉलो होने के बाद क्या होगा, पहले रिस्पॉन्स विल लाइक प्रिपेयर हमें रहना पड़ेगा डिजास्टर के लिए, और मिटिगेशन करना पड़ेगा। देयर आर टू कंडीशन वी हैव टू डेवलप इन द बिफोर द इवेंट, बिफोर द डिजास्टर वी हैव टू prepare ourselves and we have to mitigate ourselves. Mitigation का मतलब होता है to make something less serious, painful and unpleasant. किसी भी व्यक्ति को सीरियसली कम बनाना, पेनफुल कम महसूस कराना, अनप्लीजेंट उसको महसूस ना कराना, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द थ्री कंडीशन वी हैव टू मेंटेन इन द मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है टू मेक द समथिंग लेस सीरियस, पेनफुल और अनप्लीजेंट. So these three conditions we have to follow in the mitigation preparation. We have to do what type of planning we are doing for the disaster management. So these are the some of the before the event, and after the event what we have to do, we have to see the response, what type of response are coming from the disaster and what type of response we are giving according to the disaster, and what type of recovery will be following. So this is the one of the disaster management cycle. So these two diagrams we did not discuss in the last class. So already we have discussed is management of the victim of disaster. The rape victims also we have discussed already. Then acting out of the impulsive behavior. Now we have to see the new topic is the acting out of the impulsive behavior. So that acting of the impulsive behavior, so in the acting out or impulsive behavior, the person is having the impulsive type of behavior on any aggressive type of behavior, impulsive type of behavior. So this is mainly based on the poor judgment. Impulsive behavior कब होता है, जब हम impulsive कब होते हैं, कि जब हमारा poor judgment होता है। जब poor judgment होता है तब उस कंडीशन में हम क्या होते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर जजमेंट होता है वो पुअर होता है, तब हमारा impulsive behavior होता है, पुअर impulse control होता है because of any psychological condition or any abuse of the mind
दैट अल्टर द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस लेने के बाद, जैसे कि अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति होता है या ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति होता है, उसके बाद उसके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं, क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं. आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन द पर्सन शुड हैव द इंपल्सिव बिहेवियर. सो वायलेंट बिहेवियर ऑकर व्हेन द स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ द एंगर. जब वायलेंट बिहेवियर होता है तो क्या होता है, पर्सन के अंदर जो एंगर के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं, एग्रेसिवनेस ज़्यादा आ जाती है, ठीक है. और वो एग्रेसिवनेस डिस्प्लेस होती है इनटू दी ऑनटू दी अदर पीपल, जो दूसरे लोगों को वो ब्लास्ट करती है. जो यदि हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा हम अपने ऊपर ना निकाल कर हम दूसरों के ऊपर उस गुस्से को निकालते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द वायलेंट बिहेवियर. तो दो कंडीशन होती है इसके अंदर, अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर और कंडक्टेड डिसऑर्डर. अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर का मतलब होता है कि यदि हमारी किसी भी टर्म एंड कंडीशन के अपोजिशन में कोई भी व्यक्ति आता है, ठीक है, हम यदि हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन और जो भी हमारा एथिक्स है हम उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, और यदि वो एथिक्स और हमारे मॉरल को यदि कोई ब्रेक करता है तो हमारे अंदर एग्रेसिव और इंपल्सिव बिहेवियर डेवलप होता है. कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर आप देख सकते हो कि कंडक्ट डिसऑर्डर जो है, कंडक्ट डिसऑर्डर जो भी जैसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, एंटी सोशल बिहेवियर है, इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर पर्सन के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप होते हैं. जो पर्सन कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप होने के बाद इम्पल्सिव हो जाता है. व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट वी हैव टू फॉलो इन द इम्पल्सिव बिहेवियर और एक्टिंग आउट बिहेवियर. सो फर्स्ट वी हैव टू डू द असेसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कंडीशन. जो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है आपकी, एक्टिंग आउट और इम्पल्सिव बिहेवियर है. देयर आर द टू कंडीशन जिसको हम असेसमेंट करते हैं. सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर का कारण क्या है, व्हाट इज द कारण ऑफ द बिहेवियर, सो दैट वी हैव टू असेस द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द behavior, and according to that we have to give the medication, anti-anxiety medications we are giving. Then benzodiazepines drugs also can be prescribed for the patient if those who are having the acting out or impulsive behavior. Then behavior therapy can be given. Just like behavior therapy के अंदर we should give there are two techniques. Other techniques can be given, but mainly we have to follow the two techniques: token economy and reinforcement. So always we have to give the reinforcement technique in the form of positive reinforcement that comes in the reward, and negative reinforcement cannot be given because negative always comes in the punishment. So we should not give any punishment, we should have the particular positive reinforcement so that we can apply positive, and after that if the positive response is not coming from the positive reinforcement, then we should provide the negative reinforcement. Token economy, for the normal behavior or for the adaptive behavior we can give some of the token. किस रूप में दे सकते हैं, या गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, या उसको प्रेज के रूप में दे सकते हैं, या उसको पैसे के रूप में दे सकते हैं, ठीक है. अदर फॉर्म ऑफ लाइक टोकन इकोनॉमी कैन बी गिवन फॉर द अडैप्टिव बिहेवियर. लिमिट सेटिंग एंड मिलियू थेरेपी. लिमिट सेटिंग का मतलब होता है कि फॉर द माल अडैप्टिव बिहेवियर वी हैव टू लिमिट द पेशेंट और लिमिट द पर्सन. सो लिमिट सेटिंग कैन बी डन, ठीक है. इस लिमिट से बाहर जाएगा तो पर्सन को क्या उसको हार्म हो सकता है, ठीक है, क्या पनिशमेंट उसको मिल सकता है. सो वी हैव टू लिमिट द सेटिंग. फर्स्ट मिलियू, सेकंड इज द मिलियू थेरेपी. मिलियू थेरेपी वी आर प्रोवाइडिंग द एनवायरमेंटल थेरेपी फॉर द पेशेंट. द एनवायरमेंट शुड बी सुटेबल, calm and quiet, and should be comfortable for the patient. So this is the milieu therapy we can give to the in the impulsive. We can control the activity, maladaptive activity of the person. We can control some of the other aspect of the negative thoughts, so we can move to the positive aspect of the thoughts, that is called as milieu therapy. Then now we have to see the Sundowning syndrome. Sundowning syndrome का मतलब होता है कि patient with the dementia and delirium, यदि किसी पेशेंट को डिमेंशिया है, डेलीरियम है, दे आर मोर कंफ्यूज्ड. कब होते हैं, लेट आफ्टरनून और इवनिंग. जो सूरज की रोशनी जब नीचे जाती है, सूरज धीरे धीरे शाम को जब वो अपना डाउन होता है, तब उस कंडीशन में पर्सन के अंदर लेट आफ्टरनून और इवनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. वो कब कब होता है, जब पेशेंट को डिमेंशिया और डेलीरियम होता है. उसको हम कहते हैं सनडाउनिंग सिंड्रोम. सन का मतलब होता है सूरज, डाउन का मतलब होता है डाउन होना. जब सूरज डाउन होता है तो इस प्रकार से सिंड्रोम डेवलप होता है, जिसको कहते हैं मोर कंफ्यूजन इज क्रिएटिंग
in the patient when the patient is having the dementia or delirium condition. So abnormal behavior is become associated with this syndrome called continue into the night, usually cause massive disruption in the patient's life as well as in the life of those caring for the patient. मतलब ये it is very dangerous for the patient. ठीक है, is the any disruption is follow in the life of the patient, then those who are giving care of the patient, so that should be the sundowning syndrome. So management, part management can be given to the patient, pharmacological management and non pharmacological drugs can be given to the patient. Sundowning syndrome. Now we have to move into the grief. What do you mean by the grief? Grief का मतलब होता है लॉस. यदि हमसे कोई भी वस्तु जो फेवरेट वस्तु होती है, फेवरेबल वस्तु होती है, ठीक है, और या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट होता है या हमारे कोई रिलेटिव होता है, हमारा फ्रेंड होता है, कोई फैमिली मेम्बर होता है, जब हमसे लॉस होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें ग्रीफ होता है. ग्रीफ मीन्स लॉस, लॉस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज ग्रीफ. So grief is a reaction of the individual to a significant loss. So common feature, what are the common feature after the significant loss? कॉमन फीचर के अंदर फर्स्ट पेशेंट को पर्सन को क्या होता है, शॉक होता है. जब हमसे कोई भी व्यक्ति लूज होता है या हमारा कोई भी प्रॉपर्टी मिस हो जाती है या कोई भी हमारा पर्टिकुलर एग्जाम है वो मिस हो जाता है, तो हमें क्या होता है, शॉक लगता है उसका. डिसबिलीफ होता है. डिसबिलीफ का मतलब होता है पर्सन को उसका विश्वास नहीं होता, ठीक है, विश्वास नहीं रहता है, विश्वास हमेशा पर्सन को फॉल्स होता है. देन उसके बाद एंगर, पर्सन को एंगर बहुत ज़्यादा आने लगता है. यदि वो कोई भी चीज़ उससे मिस हो जाती है या कोई भी लॉस हो जाती है तो पर्सन को एंगर आता है. रिसेंटमेंट होता है. रिसेंटमेंट इज द फीलिंग ऑफ एंगर, बहुत ज़्यादा एंगर होता है, ठीक है, या उस कंडीशन उसको ऐसा फील होता है कि समथिंग इज लूज्ड फ्रॉम माई साइड and that should not be not favorable for my particular condition. So resentment होता है, depression person चला जाता है. So these are the common features are converting in after the grieving process. So grief is the defined as emotional process of the coping with a loss. ग्रीफ का मतलब होता है कि इट इज इमोशनल प्रोसेस होता है. यदि हम किसी लॉस के साथ कोप कर पाते हैं तो दैट इज दिस इंक्लूड डेथ ऑफ ए लव्ड वन, सेपरेशन और डिवोर्स, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, लॉस ऑफ ए जॉब and loses that result from a natural and imposed disaster. So these comes in the grief. Then what do you mean by the anticipatory grief? Anticipatory grief का मतलब होता है कि it can be seen in the individual or families who are expecting a major loss in the near future. मतलब उसको expect हो जाता है, assume करता है कि आने वाले समय में मेरा कितना लॉस होने वाला है. एंटिसिपेट करना, ठीक है. यदि मैं स्टडी नहीं करूंगा या मेरी सिचुएशन ऐसी होगी कि मैं आई कैन नॉट गो फॉर एनी टाइप ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग लाइक माई बिकॉज ऑफ माई डिजीज समथिंग, सो आई एम नॉट कंसंट्रेटिंग ऑफ द पर्टिकुलर टास्क और एनी एक्टिविटी. सो इन द फ्यूचर, नियर इन द फ्यूचर, देन आई विल नॉट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट. सो दैट इज नॉन एज एंटिसिपेटरी ग्रीफ होता है. कन्वेंशनल ग्रीफ का मतलब होता है, कन्वेंशनल ग्रीफ इज एसोसिएटेड विद द ग्रीफ that is experienced following a loss. किसी भी चीज को लॉस होने के बाद पर्सन के अंदर एक प्रकार के जो ग्रीफ होता है, एक्सपीरियंस होता है, that is known as conventional grief. This process of bereavement of or adapting So this process of bereavement or adapting to loss may take days, weeks, years, depending on the sense of loss for the person involved. So यह प्रोसेस जो बेरीवमेंट का प्रोसेस होता है, बेरीवमेंट मीन्स क्या होता है कि डेथ ऑफ लव्ड वन, जो हमारे किसी भी मित्र की या फ्रेंड की या किसी जो हम बहुत अच्छी तरह से उसको जानते हैं, उसकी डेथ हो जाती है. सो दैट इज वन ऑफ द कंडीशन नॉन एज बेरीवमेंट. So bereavement or adapting to loss may take days, weeks or years depending on the sense of loss for the person involving. Each person responds to the loss in a unique way. This response is based on the person's level of development, past experience and current coping strategy. So these should be in the particular grieving process.
Now we have to see the important terms of the grief. So there are various important terms of the grief are the loss. There are four important terms in the griefs are coming: bereavement, grief, loss, and mourning. So these all four important terms comes in the grief. So bereavement already we have discussed. Bereavement क्या होता है कि death of loved one, that loss of loved one यूजुअली बाय द डेथ, किसी भी डेथ के द्वारा डेथ हो जाती है व्यक्ति की, जो हमसे लूज हो जाता है, उसको कहते हैं बेरेवमेंट। ग्रीफ क्या होता है? डीप फीलिंग ऑफ द सॉरो, दैट इज डीप फीलिंग ऑफ सॉरो, सैडनेस दैट कम्स फ्रॉम द लॉस ऑफ समवन और समथिंग दैट हैज बीन इम्पोर्टेंट इन वन लाइफ। मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए वो बहुत जरूरी है, व्यक्ति या कोई भी चीज़ बहुत जरूरी है, वो यदि छूट जाती है, जैसे कि हम हमारे से जॉब छूट जाती है, या हमसे कोई कोर्स का किसी भी एग्जाम का पार्ट छूट जाता है, या हम एग्जाम देने के बाद आते हैं, हम जो क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं वो क्वेश्चन हमसे छूट जाता है, तो उससे हमें क्या होता है कि डीप फीलिंग ऑफ सॉरो होता है, सैडनेस डेवलप हो जाती है, जिसको कहते हैं ग्रीव। लॉस का मतलब क्या होता है? बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ ए पर्सन और थिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट इन वन लाइफ, किसी दूसरे के लिए वो बहुत जरूरी है यदि वो उससे अलग हो जाती है, तो दैट इज ए लॉस। मॉर्निंग का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द डीप सॉरो, बहुत अंदर से डीप सॉरो होता है, फीलिंग ऑफ डेथ और अदर सिग्निफिकेंट लॉस। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रीफ, जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन या इंपॉर्टेंट थिंग्स is losing from anybody, so that deep sorrow will come from the person's heart, so that is a death of any significant death of the person or any significant loss, that is a public expression of the grief, that is a mourning. Then what do you mean by the physiological and psychological responses to the grief? There are two conditions are developing after the grief. So physiological response or psychological response. So what do you mean by the physical response to the grief? So first physiological क्या होता है कि we are just crying. After the grief we should have the crying activity. साइंग रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि जो फीबल आदमी की रेस्पायरेशन होती है, कभी ज़्यादा किसी कम, बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाती होती है, ठीक है। पैल्पिटेशन होता है पेशेंट को, फटीग होने लगती है, वीकनेस होना लगता है, एग्जॉस्ट होने लगता है, इंसोम्निया होता है, लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ एपेटाइट, चॉकिंग सेंसेशन होता है इन द हार्ट, then tightness in the chest, gastrointestinal disturbances are also one of the physiological response to the grief. So what is the one of the psychological response to the grief? Psychological response to the grief का means होता है intense loneliness and sadness। यदि पर्सन को ग्रीफ होता है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली समझता है, अकेला समझता है, सैड समझता है, पेशेंट को एंजाइटी होती है, पैनिक एपिसोड्स आते हैं, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग इन फोकसिंग, किसी भी एस्पेक्ट या किसी भी टास्क को कॉन्सेंट्रेट करने में, फोकस करने में उनको डिफिकल्टी होती है, डिसोरिएंटेड होता है अबाउट द प्लेस एंड पर्सन एंड टाइम, एंगर होता है बहुत ज़्यादा। देन एम्बीवैलेंस एंड लो सेल्फ स्टीम होता है। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है कि द पर्सन इज बैलेंस बिटवीन द फीलिंग्स और एटीट्यूड, पर्सन का जो फीलिंग्स होती है और एटीट्यूड्स होता है उनके बीच में क्या होता है, एक प्रकार से बैलेंस होता है, जिसको हम कहते हैं एम्बी बैलेंस, ठीक है। जिसके अंदर बैलेंस बिटवीन द फीलिंग्स और एटीट्यूड के बीच में जो बैलेंस नहीं होता है, जिसको कहते हैं एम्बी बैलेंस। और लो सेल्फ स्टीम होता है, पर्सन समझता है कि मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। सो इन दैट कंडीशन द वार्निंग ऑफ द पॉसिबिलिटी सुसाइडलिटी एंड नीड्स फॉर द प्रोफेशनल हेल्प, पर्सन को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, फिर उस कंडीशन में पर्सन को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। दैट इज एम्बीवैलेंस कब होता है कि जब पर्सन के फीलिंग्स और इमोशंस, फीलिंग्स और एटीट्यूड के अंदर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, एब्सेंट हो जाता है, उस कंडीशन में पर्सन को एम्बीवैलेंस होता है। नाउ इज द थ्योरीज ऑफ द ग्रीफ। We can see that there are different types of the theory of the grief, like Kubler-Ross theory of the grief. Kubler-Ross theory of the grief in 1969. That is, those persons are terminally ill. Those patients have become terminally ill. They are having the 5 stages of the feelings and behavior that individual experience in response to a real, perceived and anticipated loss. किसी भी चीज को रियल में खोना, परसीव करना या एंटिसिपेशन लॉस होना,
उसके कारण पर्सन का जो व्यवहार है और उसकी जो फीलिंग्स है उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्या चेंजेस आते हैं पर्सन के अंदर इस तरह के कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है कि फर्स्ट जो है जो व्यक्ति फर्स्ट स्टेज वो स्टेज 1 के अंदर है डिनाइल कर रहा है, सेकंड जो है एंगर हो रहा है, थर्ड जो है वो बार्गेनिंग कर रहा है किसी दूसरे से, फोर्थ में डिप्रेशन में आ गया है, फिफ्थ के अंदर है एक्सेप्टेंस करना उन चीज़ों को। ठीक है, तो दीज आर द 5 stages of the Kubler-Ross theory of the grief। नाउ फर्स्ट स्टेज की हम बात करेंगे यहाँ पर डिनाइल। डिनाइल का आप समझते हो डिनाइल का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को डिनाई करना, यदि जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है हम उन चीज़ों को डिनाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिनाई कब करते हैं जब हमारे डिफेंस मैकेनिज्म या बॉडी मैकेनिज्म हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या हार्मफुल किसी भी सिचुएशन से उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बॉडी के मैकेनिज्म जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और हम उस सर्कमस्टेंसेस या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को डिनाई करते हैं। So deny is a conscious or unconscious refusal to accept fact, information, reality, etc. relating to the situation concerned। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन के अंदर पर्सन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसको मना करता है, किसी भी फैक्ट को एक्सेप्ट करने से मना करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने से मना करता है, किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना करता है, बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द रीजन और वन ऑफ द कॉज behind of this। So what are the example we can give in the denial? So a person diagnosed with the cancer, यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, ठीक है, तो वो उस इलनेस को एक्सेप्ट करने से डिनाई करता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डिनाई। सेकेंड इज द एंगर। सेकेंड स्टेज जो है एंगर है। सेकेंड स्टेज के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाई मी, यदि हमें गुस्सा होता है कि मुझे क्यों एक्सपोज किया जा रहा है, व्हाई मी मतलब मेरे ऊपर क्यों इस क्वेश्चन को रिमार्क किया जा रहा है, सो व्हाई मी एंड इट इज नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, आर कमेंट्स ऑफन एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द एंगर स्टेज, कि मुझे एक्सपोज क्यों किया जा रहा है, मेरे ऊपर टारगेट क्यों बनाया जा रहा है और ये आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ये कमेंट कब होते हैं कि जब व्यक्ति एंगर स्टेज में होता है। तो एंगर में भी डायरेक्टेड एट द सेल्फ, खुद के ऊपर हो सकता है, या डिस्प्लेस टू द लव वन, जो दूसरों के ऊपर भी हो सकता है जिसको आप चाहते हो, या केयर गिवर के ऊपर भी हो सकता है, इवन गॉड के ऊपर हो सकता है, भगवान आप इतना क्यों कर रहे हो, मैं आपकी डेली पूजा करता हूँ, डेली सब कुछ करता हूँ, देन अगेन यू आर गिविंग ऑल पनिशमेंट टू मी, व्हाई यू आर नॉट गिविंग टू अनदर पर्सन दोज हु आर बिकम insanity in their insanity insane। So there may be a preoccupation with the idealized image of the lost entity। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रीऑक्यूपेट होता है, प्रीऑक्यूपेशन के अंदर आ जाता है, पर्सन के अंदर आइडियल इमेज डेवलप हो जाती है किसी को लॉस्ट करने के बाद, सो एंगर होता है। नाउ द सेकेंड थर्ड के अंदर है आपका बार्गेनिंग करना। बार्गेनिंग आप तो पता है आपको कि जब आप मार्केट में जाते हो तो सब्जी की भी बार्गेनिंग करते हो आप, या कोई भी आपने असाइनमेंट दिया हुआ है तो असाइनमेंट देने के बाद यदि टीचर से बार्गेनिंग करते हो, सर प्लीज़ आप इस बार मत छोड़ दीजिए, अगली बार नहीं करेंगे ऐसा, टाइम पे सबमिट कर देंगे, या कोई भी बार्गेनिंग हम करते हैं उस बार्गेनिंग को कहते हैं, उससे हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो लॉस है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो इसके अंदर फर्स्ट थर्ड जो स्टेज है बार्गेनिंग है, इसके अंदर पर्सन के अंदर फॉल्स होप होता है, वेयर पर्सन माइट फॉल्सली बिलीव दैट he can avoid grief through the a type of negotiation, he is doing the negotiation, he don't want to get the any type of grief in the person, so he want to do the avoiding the grief and he is having the negotiation with the particular things। So bargaining is made with the God is an attempt to reverse or postpone the loss। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो गलती हुई है हम आगे गलती नहीं करेंगे, कि आगे से प्लीज़ हमें इसके लिए माफ़ कर दो। तो एग्जाम्पल, ए वाइफ में से दैट इफ यू हील माई हस्बैंड, एक वाइफ कहती है भगवान से कि यदि तुम मेरे हस्बैंड को अच्छा कर दोगे तो आई विल स्ट्राइव टू बी द बेस्ट वाइफ, मैंने कि अच्छी वाइफ बन करके रहूँगी। बार्गेनिंग विद द गॉड्स, गॉड से बार्गेनिंग करना। ठीक है, यदि भगवान मुझे आप इस एग्जाम में पास कर दोगे तो मैं तुम्हें 11 रुपये का या 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। ठीक है, या
कोई भी हम पर्टिकुलर कि इतने आप व्रत रखूंगी ना, मुझे मुझे ये रखना है, मुझे वो, बहुत सारी चीज़ों को आप बार्गेनिंग करते हो भगवान से, तब उसके बाद ही वो चीज़ें अपने अंदर कैसी होती हैं, सेटिस्फैक्ट्री होती हैं, और हमारे अंदर जो एंगर है और हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, हमारे अंदर जो एंजाइटी है, उसको आप रिजॉल्व करते हो। नेक्स्ट स्टेज 4 के अंदर हम बात करें डिप्रेशन की। पर्सन के अंदर डिप्रेशन होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फीलिंग ऑफ सैडनेस, रिग्रेट, फियर, अनसर्टेनिटी। ठीक है, पर्सन के अंदर डिप्रेशन आपने देखा होगा कि पर्सन को बहुत दुख होता है, अपने आप को रिग्रेट करता है, बहुत डरा हुआ सा महसूस होता है, अनसर्टेनिटी फील करता है। सो दैट इज वन ऑफ द डिप्रेशन। दिस इज द इंडिकेशन दैट अ पर्सन हैज एट लीस्ट बिगन टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द लॉस। वो फिर स्टार्ट करता है कि एक व्यक्ति जो है, हम यदि उसको एक बार यदि नुकसान हो गया तो सेकेंड टाइम वो सोचेगा यार कोई बात नहीं, हो गया अनजाने में। सेकेंड टाइम भी लॉस हो गया, अनजाने में हो गया, थर्ड टाइम हो गया तो वो सोचेगा कि यार इसका कोई कारण है, तो बार बार थर्ड टाइम भी लॉस हो गया, तो वो उस रियलिटी तक पहुंचता है कि उसकी रियलिटी क्या है, कि बार बार मुझे लॉस क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसके उस कंडीशन के अंदर वो डिप्रेशन स्टेज के अंदर डेवलप हो जाता है। स्टेज 5 के अंदर एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्ट करना कि जो भी आप काम करते हो उसको एक्सेप्ट करना और उसको फुलफिल करना इन ए पॉजिटिव मैनर। सो दिस स्टेज ब्रिंग्स ए फीलिंग ऑफ पीस regarding the loss that has occurred. Focus is on the reality of the loss, its meaning for the individual affected by it. So acceptance, whatever condition is there, whatever loss is there, whatever the unreality is there, the person should have focus on the reality and should have the removal of the loss, and when the person is having the affected by of it, so that is a acceptance. Next is a John Bowlby theory of the grief process. John Bowlby theory of the grief process, that it has 4 stages in the grief process. इसकी 4 स्टेज होती हैं. These behavior can be seen in all individuals who have experienced loss, even in the infant young age 6 month of age. यदि किसी भी बच्चे की एज 6 महीने की है तो उस इन्फेंट को भी ये पर्टिकुलर ग्रीफ प्रोसेस हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, जो दिया है, ये थ्योरी दी है जॉन बॉलबे ने। इसकी 4 स्टेज हैं कि पर्सन का बिहेवियर किस तरह हम देखा जा सकता है जब उसको कोई लॉस होता है। ठीक है, तो उसके अंदर स्टेज फर्स्ट के अंदर हम बात करेंगे कि पर्सन के अंदर स्टेज 1 है, वो नंबनेस और प्रोटेस्ट करता है। जैसे आप किसी बच्चे को खिलौना दे दोगे, खिलौना देने के बाद अब यदि उस बच्चे से फ्रेंड से आप वापस मांगोगे तो वो उस खिलौने को कभी देगा नहीं, उसको फिस्ट से पकड़ करके, टाइटली पकड़ करके आप उससे प्रोटेस्ट करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को स्टेज 1 कहते हैं। सेकेंड स्टेज क्या होती है? डिसइक्विलिब्रियम। हम जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो इसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम शुड बी मेंटेन। स्टेज 3 के अंदर क्या होता है? डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि यदि हम किसी भी डिसऑर्गेनाइजेशन को यदि ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो हमारे अंदर ग्रीफ प्रोसेस डेवलप नहीं होता। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि यदि डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो हम उसको वापस से रीऑर्गेनाइज करते हैं। सो स्टेज 4 के अंदर there are 4 stages we can develop in the theory of the grief process by the John Bowlby. Next is the Borden theory of the grief process. So Borden theory, he viewed the bereaved as active and self-determining rather than passive participants. ठीक है, बॉर्डन थ्योरी के अंदर क्या दिया हुआ? बॉर्डन थ्योरी के अंदर दिया हुआ है कि एक ब्रेव्ड कंडीशन होती है। ब्रेव्ड का मतलब होता है कि डेथ ऑफ लव्ड वन या लूजिंग समथिंग या सेल्फ डिटरमाइनिंग विच कैन बी सेल्फ डिटर्मिनेशन विल बी डेवलपिंग इन द पर्टिकुलर थ्योरी। सो देन पैसिव पार्टिसिपेंट्स, मतलब उसमें क्या होता है कि पैसिव पार्टिसिपेंट की बजाय एक्टिव ब्रेव्ड होता है और सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। सो इट हैज 4 टास्क होते हैं मॉर्निंग के अंदर। इट हैज 4 टास्क ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का जो पर्टिकुलर कंडीशन है इसके अंदर एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ लॉस, एक्सेप्ट करना जो लॉस हुआ है उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करना। वर्किंग थ्रू द पेन ऑफ ग्रीफ, जो ग्रीफ का जो पेन है उसको उसके बिहाफ पर हमें प्लानिंग करनी है कि वो आगे ना हो। एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट दैट हैज चेंज बिकॉज ऑफ द लॉस, एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करना, कोप करना।
ठीक है, जो हम आगे उस लॉस को हम चेंज कर सकते हैं। इमोशनली रिलोकेटिंग दैट, इमोशनल रिलोकेट का मतलब होता है कि जो जहाँ पर सर्कमस्टेंसेस आर नॉट फेवरेबल, वी आर रिलोकेटिंग द पर्टिकुलर प्लेसेस फॉर इमोशनली एडजस्टमेंट के लिए, so which has been lost and moving on with life. So next we can see here the common symptoms of the grief. सिम्टम्स जो है आपके पर्सन को कॉमन सिम्टम, ग्रीफ होने के लॉस होने के बाद क्या होता है, पर्सन को शॉक होता है, डिसबिलीफ होता है, सैडनेस होता है, गिल्ट होता है, एंगर होता है, फियर होता है। फिजिकल सिम्टम्स जैसे फटी है, नोजिया है, लोअर इम्यूनिटी है, वेट लॉस होता है, वेट गेन भी हो सकता है, एक बॉडी एक होता है, पेन एंड इंसोम्निया। सो दीज ऑल कॉमन सिम्टम्स यू कैन सी इन द ग्रीफ. So next is the grief process. Grief process we will discuss in the later class. So now I am stopping here. Thank you everyone.